Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today's video is basically about a difference between review and research article. So many a times whenever we think of writing a research article or a review article, हम लोग confuse हो जाते हैं कि दोनों same है and if अलग है तो what is the difference between them. So in today's video we are going to discuss about the differences between review and research article. A research article is basically based on the original research. मतलब ये इसका जो idea है, इसका जो invention है, that's unique and like उस पे there's nobody has done anything before a research on that. It's purely original. While review article is something that an article that you write on a pre-existing research. मतलब अगर किसी ने already किसी चीज पे research कर ली है, तो आप उन अलग-अलग researches को 4-5 अलग अलग आर्टिकल्स को एक साथ मिला के एक डेफिनाइट आर्टिकल बनाते हैं जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च पर होता है. Similarly, second point focuses that the research article focuses on one experiment or survey or a proposal. मतलब if you are writing a research article, you have to restrict yourself with a particular topic. Suppose if I am writing something that's related to agriculture, so you need to restrict yourself to agriculture only. आप बाकी की fields में अलग-अलग नहीं explore कर सकते. But if you go to see review article, it has got many things. Like you can include different surveys, different questionnaires, different interviews in your article and different study proposals. Various proposals जो probably national या international जो भी levels के whatever article you are writing. Similarly, research article is a detailed elaboration of proposal. मतलब आपको A to Z हर एक चीज मेंशन करनी होती है. How will you carry out research? This research will last for how much time? And on what are you carrying out research? आपका main thesis, आपका rationale, hypothesis, everything. While review article mainly summarizes the literature review. Literature review होता क्या है? Literature review is basically whenever you go through a different 4-5 different articles, तो आप उन्हें review करते हैं, उन्हें study करते हैं, and you find out what are the exact points. Now research article जो है, it basically focuses on one thing. A person usually proposes his or her own ideas and puts forward the interpretations and theoretical framework. यानी कि जो एक person है उसके unique ideas जो होते हैं, उसका जो own unique style होता है, उसने कोई अगर invention करी हो, so research article उस पे ज़्यादा emphasis करता है. While review article जो है, वो basically it is a method in which a person finds commonalities and performs gap analysis if any problem statements are available. यानी कि वो अलग-अलग आर्टिकल्स पर रेफर करेगा, उनके बीच में कॉमन चीजें ढूंढेगा जो सब में कॉमन है. और अब अगर वो अलग-अलग आर्टिकल्स ढूंढ रहा है तो कोई ना कोई आर्टिकल में कुछ ना कुछ गैप एनालिसिस होगा. मतलब कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस या कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जो उसमें क्रिएट जो जिसको ओवरकम नहीं किया गया है. सो वो इंक्लूड कर सकता है अपने रिव्यू आर्टिकल में अबाउट दैट स्पेसिफिक problem statement or the gap analysis. Similarly, one more point of difference, research article जो होता है, it mainly includes methodology and results. But अगर हम review article में देखें, results as well as theoretical framework, इन दोनों ही चीजों पे इतना emphasis नहीं किया जाता है. You do not focus, you just focus on gap analysis. You do not focus on methodology and research. One can include images, helpful figures, flowcharts, different kinds of कुछ भी अगर आपका अलग अलग clip arts या कोई भी ideas है अलग, so आप वो review as well as research article दोनों में ही incorporate कर सकते हैं. There's no rule कि आप उसमें नहीं रख सकते या review में नहीं, आप review as well as research article में images, figures, flowcharts include कर सकते हैं. So guys, this slide basically tells you the format of review and research article. So कुछ चीजें जो common है review as well as research में. Number 1, title and name of authors. So अगर आपका title of research article या title of review article आप दोनों में ही mention करना होता है. Similarly, the name of the authors. If there are any co-authors associated with you, you can mention that in your research article or review article.
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन. So abstract and introduction is basically common in both again. Abstract आप एक summary type देता है आपके review article as well as research article को, and introduction basically बंदा अगर पूरा नहीं पढ़ रहा है रिव्यू या रिसर्च बट उसको इंट्रोडक्शन से इतना पता चल जाता है कि हाँ दिस रिव्यू और दिस रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक क्या है एग्जैक्टली वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. सो यू कैन मेंशन दैट एज वेल. इन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन दोनों में कॉमन है एंड ये सारी जो चीजें हैं ना ये कंपलसरी है, मतलब आपको इसे इंक्लूड करना ही करना है. यू कैन नॉट मिस दिस पॉइंट्स आउट ऑफ योर आर्टिकल और योर प्रपोजल. नेक्स्ट जो है थीसिस स्टेटमेंट. ये thesis statement is quite specific to your research proposal because obviously it's your own innovation, it's a unique idea, so you have to mention a thesis statement that's relatable to your article. But review article में आप already pre-existing जो चीजें हैं उस पे आप review कर रहे हैं, so you don't need to mention about thesis statement, you can directly mention about the literature review. The literature review is again common in both. अब लिटरेचर रिव्यू यू वुड आस्क मी कि हम रिसर्च में लिखेंगे या नहीं. आपको लिखना ही है लिटरेचर रिव्यू बिकॉज अब काफी बार रिसर्च में कोई अगर सपोज एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड मैं कोई रिसर्च लिखा हूं तो इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. अगर एक इक्विपमेंट डिजाइन किया गया है जो यील्ड क्रॉप की यील्ड बढ़ा रहा है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत इन अ स्मॉल नटशेल. बट आपको अपना आर्टिकल ऑब्वियसली सिंस इट्स योर ओन प्रपोजल वो आइडिया यूनिक है तो आपको वो दिखाने में हेल्प करेगा कि हाँ दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और डिवाइस और इक्विपमेंट और अब आपने ये अलग प्रपोजल किया है. सो यस यू कैन डेफिनेटली मेंशन अबाउट द लिटरेचर रिव्यू इन योर रिसर्च आर्टिकल. द नेक्स्ट पॉइंट इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी. Methodology is common in both research as well as review article. The methodology basically defines your whole article कि आप how are you, what is exactly your project, what is exactly your article about, what is exactly your proposal about. So आपको वो detailed elaboration करना है, दोनों में ही common है वो. But theoretical framework is specific to research article. आपको वो review article में mention नहीं करना है. You have to mention only in the research proposal. Next if we go to see अगर आपके रिसर्च आर्टिकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होता ही होता है लाइक इफ इट्स अगर मैं कोई इक्विपमेंट डिजाइन कर रहा हूँ बट अब वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सो व्हाट इज दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, so you can mention that over here. Similarly, if there are any research questions associated with it, that can be mentioned in this point as well in this paragraph. But यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मॉडल्स थियोरीज और हाइपोथेसिस का एक अलग से पैराग्राफ बनाना है, एक अलग से you have to write it separately. If there are any pre-existing models of the review article जिस पर आप रिव्यू कर रहे हैं, अगर उसकी कोई थियोरीज हैं, जैसे अगर आप कोई डोपामाइन थियोरी, अगर आप बहुत सारी अलग अलग सिजोफ्रेनिया में थियोरीज होती है, सो अगर आप कोई अलग अलग थियोरीज को मेंशन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस है कोई, अगर ऑलरेडी कोई आर्टिकल छपा है जिसकी हाइपोथेसिस है, सो आप वो कंपैरिजन फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेफिनेटली. बट नेक्स्ट इफ यू गो टू सी in research article you have to mention the project design and the discussion. If you mention about discussion it looks very professional and definitely it would increase the captivation of the reviewer of the जो आपके article को actually पढ़ रहे हैं. Similarly in the review article you have to mention about the comparison studies. Suppose अब मैं 3 अलग अलग articles को refer कर रहा हूँ और तीनों articles contradictory है. Like one article states के ये equipment use करने से your yield of the crops will be enhanced, but the other article says that the yield of the crops will not be enhanced. तो ये opposite होगा एक दूसरे के. सो आप अगर comparison format में लिखते हैं तो रिव्यूअर को ऑब्वियसली पता चल जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी डीप है और उससे मालूम होता है कि आपने कितनी अलग अलग चीजों में एक्चुअली you have actually gone through the article. Next point is very important. Review research article का आपको benefits to the society and expected outcomes mention करना है in your article or proposal, research proposal. Like वो advantages क्या है उसके, वो society को कैसे उसका फायदा क्या है
अगर वो सपोज मैं इक्विपमेंट बना रहा हूँ तो वो इको फ्रेंडली है, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करता है, तो वो उसका एक एडवांटेज हो गया, बेनिफिट्स टू द नेचर, बेनिफिट टू द सोसाइटी हो गया। बट अगर हम यहाँ देखें तो वो आपका ऑलरेडी कोई नया आर्टिकल, आप कुछ इनोवेशन नहीं ढूंढ रहे, राइट? रिव्यू में आप प्री एग्जिस्टिंग रिव्यू पर ही काम कर रहे हैं। सो यस, यू कैन मेंशन अबाउट प्री एग्जिस्टिंग रिव्यू ओवर हियर, बट डेफिनेटली आप उसमें नहीं मेंशन करेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम्स या फिर बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉमन है, कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स का, दोनों में ही लिखना है आपको अबाउट कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स। सो दोनों में काफी कॉमन है ये तो, कि आप how would you conclude your research article, how would you conclude your research review article. References and bibliography is again a common point in both of them. आपको दोनों में ही रेफरेंसेस, अपेंडाइसिस तो नहीं होते, रेफरेंसेस एंड बायोग्राफी दोनों ही इंक्लूड करने होते हैं। एंड इट्स क्वाइट ये you have to mention actual genuine वाले references, because actually the reviewer will go through the references कि आपने क्या वहां से सच में लिया है। So you cannot just ऐसे नाम लिखने के खातिर नहीं लिख सकते। और एक पॉइंट जो एडिशनल है रिव्यू आर्टिकल में, दैट्स अबाउट एक्नॉलेजमेंट एंड सप्लीमेंट्री डेटा। If you have any data that's supplementary that will complement your article, you can definitely incorporate it in your article paper. और अगर आप किसी को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, किसी की हेल्प की थैंक यू बोलना चाहते हैं, सो दैट ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन। नेक्स्ट हम देखें तो ये आपको बताता है हाउ टू पब्लिश योर रिसर्च और योर रिव्यू आर्टिकल। तो अब हमने रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल बना लिया, बट अब उसे करे क्या, उसे हम पब्लिश कैसे करें, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा इसे। रिमेंबर, यू कैन सेंड योर प्रपोजल्स टू वेरियस जर्नल्स, बट इट कैन बी पब्लिश्ड इन जस्ट वन ऑफ देम। मतलब अपने आर्टिकल्स, अपने रिसर्च प्रपोजल अलग अलग जर्नल्स में भेज सकते हैं, मगर वो सिलेक्टिवली सब एक में ही हो सकता है पब्लिश, आप सब में उसे पब्लिश नहीं कर सकते। सो आपको एक प्रोसीजर होती है कोई भी चीज को पब्लिश करने के लिए। सो ये स्टेप्स है कुछ। फर्स्टली आपको एक जर्नल सिलेक्ट करनी है। अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है टॉपिक तो आप कोई एग्रीकल्चरल जर्नल चूज करेंगे। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो इंजीनियरिंग काइंड ऑफ जर्नल सिलेक्ट करेंगे। फिर अब choose the level of dissemination of paper. Dissemination of paper मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन कितने लोगों तक पहुंचानी, और ये कितनी क्षमता रखता है कि वो कितना, लाइक व्हाट इज द क्वालिटी, एंड आप इसको कौन से लेवल पे पब्लिश करना चाहते हैं। स्टेट लेवल पे, यानी कि सपोज महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही देखने चाहिए। नेशनल लेवल पे, यानी कि सिर्फ अगर इंडिया के लोग ही, और इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन एज वेल, आप फॉरेन ऑथर्स एंड अदर फॉरेन रिव्यूअर्स भी इसे पढ़ सकते हैं। अब आपने जर्नल तो चूज कर ली। आफ्टर चूजिंग द जर्नल यू नीड टू अबाइड बाय देयर गाइडलाइंस ऑफ द ऑथर एंड फॉर्मेट। यानी कि आपने अब रिसर्च और रिव्यू प्रपोजल बना तो दिया है, मगर अब आपने एक फॉर्मेट जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था वो फॉलो करना ही है। बट अगर उसका कोई, वो जर्नल का एक अलग फॉर्मेट होगा, यानी कि अगर उसमें सपोज मेथोडोलॉजी के बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होगा या वॉट एवर इट इज, तो आपको वो देखना है उसके रूल्स कि भाई ये कैसे हमें अरेंज करना है, और वो हिसाब से ही आपको आगे जाने मिलेगा। अब आपने बना लिया उनके हिसाब से सब कुछ, उसके बाद सीधा आपको उनका अपना प्रपोजल या आर्टिकल है वो मेल करना है उन्हें, अगर वो ई जर्नल है, ई बुलेटिन जो भी है। अब नेक्स्ट आपने मेल कर दिया, अब आपको बस वेट करना है कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट हुआ तो आप दूसरी जर्नल्स में भी उसे ऑफकोर्स आप सब बहुत जगह पर मेल करके रखिए, अच्छा ही होगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग। एंड ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, राइट? एंड अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या है, दूसरी जर्नल में पब्लिश हो पाएगा। सो दीज वर द डिफरेंट स्टेप्स इन विच यू कुड पब्लिश योर रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको रिव्यू एंड रिसर्च आर्टिकल के बीच का थिन डिफरेंस समझ आया होगा। If you like my video, please do share and subscribe, and thank you so much everyone for watching the video.